اگر تم پاکستانی جاہل نہیں ہو, اگر تم بکاؤ نہیں ہو, اگر تم فراڈیا نہیں ہو, اگر تم حرام کا نہیں کھاتے, تو پاکستانی ہو میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو یار, کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو؟ تم جاؤ اور تم کھل کے بھارت کے اوپر حملہ بولو, بھارت نے یہ کر دیا, بھارت نے کر دیا. اور بھارت کو تو کرے ہوئے 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے. میں عاصم منیر کی بات کر رہا ہوں. اور ٹامی گڈ بوائے, جیسے کتے کو بسکٹ دیتے ہیں لوگ, کتے کو بسکٹ دیتے ہیں, پاکستانی آرمی کو پکڑا دیا 300 ملین ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا, اب یہ دم ہلا رہا ہے. ٹامی خوش ہے. او بھائی صاحب ایک بات بتاؤ, آپ کو کس چیز کے لیے ملے 300 ملین؟ انعام ملا نا آپ کو. آپ ایک وفادار ٹامی تھے, آپ ایک وفادار ٹامی تھے. جب مالک نے بولا بھونک تو آپ بھونکے, جب مالک نے بولا کاٹ تو آپ. پاکستانی عوام سے جاہل کوئی عوام نہیں ہے, ان سے کوئی جاہل عوام نہیں ہے. بہت کم فرق ہے پاکستانی عوام. پھر میں پاکستانی کہہ رہا ہوں, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا, میں خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا, میں سندھ کی بات نہیں کر رہا. مطلب ایک بیلٹ ہے وہ پوری, ایک اسٹیٹ ہے پاکستان میں, پاکستانی پنجاب. ان کا آئی کیو اور جہالت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے پورے پاکستان کو نیچے کھینچ رکھا ہے. ان کے لوگ ہیں پاگل. اگر ان کے لوگ پاگل نہیں ہوتے, یا ان کے لوگ احمق نہیں ہوتے, یا بیوقوف نہیں ہوتے, جاہل نہیں ہوتے, تو ان کو جوتے مار کے باہر نکال دیتے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جاہل ہے, ان میں ریڑھ کی ہڈی بھی نہیں ہے. کوئی بھی ملک ہو, کتنا برا کتنا اچھا, ظلم کے آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ظلم کے آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جو ڈیموکریسی کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے, آپ نے کبھی پاکستان میں دیکھا ڈیموکریسی کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے؟ پولیٹیکل پارٹی کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا نیتا کیسا ہو, فلانے ڈھمکے جیسا ہو, ٹھیک ہے, کہ ہمارا لیڈر کیسا ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان میں ہو جائیں گی. لیکن پاکستانی کبھی سڑک پہ پولیٹیکل لیڈر کے لیے آئے, پولیٹیکل لیڈر کے لیے گولی کھائی. پاکستانیوں نے کبھی ڈیموکریسی کے لیے, اپنے ملک کے لیے گولی نہیں کھائی. یہ ایسے ڈیزرو ہی نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں. تو دیکھو حکمران آپ کو ویسے ہی ملتے ہیں جیسا آپ ڈیزرو کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. جیسی قوم ہوتی ہے اس کو ویسے لیڈر مل جاتے ہیں, ویسے ہی حکمران اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی ایسے بلاول جیسے لوگ, ان کی قسمت ایسی ہے. بلاستان میں ایلیٹ ہے جو کہ ڈیسیجن میکنگ ہے. 4-5 ہزار جو فیملیز ہیں وہ اتنی امیر ہیں, ان کے پاس چوری کا, ڈاکے کا اتنا پیسہ ہے, بلیک کا جس کو کہتے ہیں حرام کی اتنی دولت ہے کہ وہ زندگی بھر اگر ان کے 10 کپڑے ہوں گے نا دھونے کے لیے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منرل واٹر سے دھو لیں گے میرے کپڑے. دے ہیو دیٹ کائنڈ آف منی. اور سب چوری کا, سب ڈاکے کا, سب فراڈ کا, حرام کا پیسہ. مطلب ان کو دقت نہیں ہے, ان کو کوئی دقت نہیں ہے. او بھائی جو پاکستان میں جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جاہل ہیں لوگ, ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ایسا کر دیں گے تو دیکھو ہمیں تو روکے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے نا. آئی تھنک لگ بھگ 23 اپریل کو ہو گیا تھا آرام سے, ٹھیک ہے. 23 مئی چلا گیا, 23 جون چلا گیا, 2 مہینے ہو گئے. ہماری ریڈ لائن ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب کرو, کس نے منع کرا ہے تمہیں؟ جب میں پاکستان کہتا ہوں میرا مطلب پنجاب ہے, میرا مطلب بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, یہ سب ہے ہی نہیں. میرا مطلب جب بھی میں پاکستانی کہتا ہوں میرا مطلب ہے پاکستانی پنجاب, ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ میں سارے پاکستانیوں کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, جب میں پاکستان کہتا ہوں میرا مطلب پنجاب ہے, پاکستانی پنجاب, لاہور والا. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ مانتا ہے کہ عاصم منیر ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان, ٹھیک ہے. جو زرداری ہے ان کا راشٹرپتی, وہ پھیتا کاٹنے کے لیے ہے. جو ان کا پردھان منتری ہے شہباز شریف, یہ معافی مانگنے کے لیے ہے, اور سر دھمکی دینے کے لیے ہے بلاول بھٹو. خواجہ آصف سر, خواجہ آصف ان کو بے عزت کروانے کے لیے ہے. انہوں نے ایک منتری رکھا ہے, اس کو پروٹوکول دیتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, سیکیورٹی دیتے ہیں, بنگلہ, گاڑی, گھوڑا, گاجا باجا سب اس کے ساتھ چلتا ہے. اس کا صرف کام ہے پاکستان کو ذلیل کرنا. اس کے بنا جیسے ہم لوگ بھول گئے کبھی ذلیل کرنا. خواجہ آصف پاکستان کا جنریٹر ہے کہ جب بے عزتی کی بجلی آنا بند ہو جائے تو ایک جنریٹر تو چاہیے کہ جی بھائی جب تک اب بھارت بھول گیا چاہ تو ہی کر ابھی. تو وہ اس لیے تو الگ الگ لوگ رکھ رکھے, لیکن ڈیسیجن میکنگ کے لیے عاصم منیر ہے. اور یہ راشٹرپتی ٹرمپ مانتے ہیں, امریکہ مانتا ہے. اور امریکہ آج سے نہیں, بہت پہلے سے, 10 سال پہلے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں نے آج ہی میڈیا میں پڑھی تھی, میں بھول گیا. some ambassador or somebody, some diplomat of USA telling the president or telling their own ecosystem in America that engage with the army. پاکستان کے پولیٹیشنز آر یوزلیس, ان کے کچھ بس کا نہیں ہے, یہ صرف ربر سٹیمپ ہے, ان کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے. اگر آپ کو پاکستان سے کام کروانا ہے تو آپ کو جرنیل سے بات کرنی ہوگی. ان کا پوری ڈیموکریسی, پورا ووٹنگ, پورا سنویدھان, پورا پاکستان کا جو آئین ہے, کانسٹیٹیوشن, آل دس از ٹوائلٹ پیپر. اس کی اہمیت ٹوائلٹ پیپر جتنی ہے. اگر آپ کو پاکستان میں کام کروانا ہے تو آپ کو پاکستان کی اصلی کیپٹل راولپنڈی ہے, اٹ از ناٹ اسلام آباد.
जहां पे जीएचक्यू है, जहां पे आर्मी का उनका हेडक्वार्टर। अगर आपको पाकिस्तान से काम करवाना है तो भाई आपको रावलपिंडी जाना करो। अगर तुम पाकिस्तानी जाहिल नहीं हो, अगर तुम बिकाऊ नहीं हो, अगर तुम फ्रॉडिया नहीं हो, अगर तुम हराम का नहीं खाते, तो पाकिस्तानियों मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो? तुम जाओ और तुम खुल के भारत के ऊपर हमला बोलो, भारत ने ये कर दिया, भारत ने कर दिया। और भारत को तो करे हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। करो अब जाओ भीख मांगो सऊदी अरेबिया से, चाइना के पैरों में लौट जाओ, हमला कर देंगे। ये पता है इतने चोट्टे किस्म के लोग हैं ये, इनकी लीडरशिप इतनी चोट्टी है। अपने लोगों को क्या बोलते हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये हम लाल किले पे सब्ज परचम लहरा देंगे इंशाल्लाह। ये सब बकवासबाजी करते हैं, फ्रॉडबाजी। यस सर। ठीक है, और बाहर जाके वर्ल्ड बैंक के पैरों पे लेट जाए, यार भारत को कुछ तो बताओ यार, पानी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं खोलेंगे, भागो यहां से, भागो। कुछ सर इनके शब्द इस पे भी बनते थे बोलने के लिए, तो किस पे? ईरान और इजराइल वाला सर, उस पे बड़े शांत बैठे हैं सर, उस पे कोई नहीं बोल रहा सर। शांत? इन्होंने पैसा पकड़ा है। अच्छा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको अभी 300 मिलियन का, हाँ वो सर न्यूज आई, बोला है ना 300 मिलियन का। यस सर। कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे भाई? एशियन डेवलपमेंट बैंक किसके हाथ में है? अमेरिका के हाथ में, अमेरिका और सर वो जापान के हाथ में। यस सर। फिलीपींस में उसका हेडक्वार्टर बन रखा है। राइट सर। अब एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात बताओ मुझे, जी। फिलीपींस चीन का दुश्मन है, बिल्कुल सर। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिए हैं, राइट। ठीक है ना? आज की तारीख में पाकिस्तान कुछ कर ले, ये बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी चुप्पी खरीदी जा चुकी है। एक उसको डिनर करा, यस सर, वो तो लंच करा, वो तो दिख ही नहीं रहा सर तब से। हाँ वो चुप बैठा है। जब उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसकी मीटिंग हुई, उन्होंने अमेरिका का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि भाई वो खाना खाकर आ गया था, ट्रंप का उसने नमक खाया है, वो चुप, वो नमक का हक अदा कर रहा है। मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं। और टॉमी गुड बॉय, जैसे कुत्ते को बिस्किट देते हैं लोग, कुत्ते को बिस्किट देते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को पकड़ा दिया 300 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अब ये दुम हिला रहा है, टॉमी खुश है। ओ भाई साहब एक बात बताओ, आपको किस चीज के लिए मिले 300 मिलियन? इनाम मिला ना आपको जी। आप एक वफादार टॉमी थे, आप एक वफादार टॉमी थे। जब मालिक ने बोला भौंक तो आप भौंके, जब मालिक ने बोला काट तो आप काटा। ठीक है, मालिक ने आपको बुलाया घर पे, मालिक ने आपको बिस्किट खिलाया, आपके सर पे हाथ फेरा। अब मालिक ने आपको बोल दिया कि ठीक है तुम एक वफादार टॉमी हो और हम तुम्हें पैसा देते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक को फोन करा कि जरा 300 मिलियन दे देना भूखे नंगों को, दे दिया पैसे। अब ये 300 क्या पाकिस्तानी आवाम के पास जाएंगे? नहीं सर। आज तक नहीं गए, आज तक नहीं गए। कितने आते हैं? 50 मिलियन, 100 मिलियन, 300 मिलियन हर हफ्ते कोई ना कोई दे रहा होता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की आवाम वैसी की वैसी जाहिल, ना एक ढंग का अस्पताल नहीं है पूरे पाकिस्तान में। जो कहते हैं कि हम सक्सेसफुली लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट, सब के सब इंडिया आना चाहते हैं, तो इंडिया ने वीजे इनके बंद करवा दिए, वरना सब के सब यहाँ पे पड़े रहते थे। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, सब इधर ही पड़े रहते थे, मुंबई नहीं है इनके एलीट। अब अच्छा, मैंने एजुकेशन के बारे में बताया यस सर, कि सब अपने बच्चे बाहर भेजते हैं। पाकिस्तान में अस्पताल क्यों नहीं? ये बताओ मिश्रा जी को ढंग का। क्योंकि कौम ही सर पढ़ी लिखी नहीं है लोग। नो, तो वही चीज जिसकी वजह से स्कूल अच्छा नहीं है। जब भी कोई पाकिस्तानी को जुकाम होता है और वो एलीट का है, जो टॉप का पाकिस्तानी है, जो अरबपति खरबपति है, जिसने हराम का पैसा जी कमा रखा है, अमेरिका से डॉलर, ये ड्रोन के बेस दे के ये सब, और अपनी कौम को बेच के उनकी हड्डियों का गूदा निकाल के, ये हराम का पैसा जो इकट्ठा कर रखा है पाकिस्तानियों ने, जब उसको जुकाम होता है वो फ्लाइट पकड़ के लंदन जाता है। उसको इलाज करवाना ही नहीं यहाँ पे यार, उसका काम चल रहा है। हाँ, अगर उसको इमरजेंसी होती है तो दुबई चला जाता है, बगल में 2 घंटे की फ्लाइट, एयर एम्बुलेंस आती है उसके लिए, प्रॉपर वो लेट के जाता है। आपको क्या लगता है वो लाहौर के अस्पताल में जाएगा जो अमीर आदमी है? हाँ भाई साहब, आपको पता है इनके कुत्ते जाते हैं बाहर इलाज के लिए। पाकिस्तानी आवाम से जाहिल कोई आवाम नहीं है, इनसे कोई जाहिल आवाम नहीं है, बहुत कम फर्क है। पाकिस्तानी और फिर मैं पाकिस्तानी कह रहा हूं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं बलोचिस्तान की बात नहीं कर रहा। यस सर। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा। मतलब एक बेल्ट है वो पूरी, एक स्टेट है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पंजाब। उनका IQ यस सर, और जहालत इतनी ज्यादा है कि उसने पूरे पाकिस्तान को नीचे खींच रखा है। 100% आप देख लो, ये जो एलिट है पाकिस्तान के, इनके कुत्तों का इलाज बाहर होता है यार। इंसान के लिए लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ढंग का अस्पताल नहीं है पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ट का इलाज या ब्रेन का इलाज नहीं होता पाकिस्तान में। मैं ये कह रहा हूं कि ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, कोई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जिसमें करवा ले, सब बाहर भागते हैं। ये बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान के मामले में। और ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये पैसे उन लोगों के पास जाते हैं जो कुत्तों का इलाज करने के लिए फ्लाइट पकड़ के बाहर जाते हैं। ये जो सच है वो सच है। एलीट तो नहीं रुकते ना पाकिस्तान में, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके इलाज बाहर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बाहर है, उनके बच्चों के पासपोर्ट बाहर के हैं, उनका पाकिस्तान से क्या लेना देना?
अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 300 मिलियन आया, ये बैंक अकाउंट में हिट करेगा, इसमें से कुछ फौज के पास चला जाएगा, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ जजों के पास चला जाएगा, कुछ बिजनेसमैन के पास चला जाएगा, खा पी के डकार मारेंगे, आउट। मौज की जिंदगी। हाँ, मौज की जिंदगी और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, यस सर। टर्की क्यों कर रहा है? टर्की अपना उल्लू, किसी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये टर्की वर्की जो कंट्रीज है ना, Yes, sir. इनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। ये एर्दोगान अपना झंडा ऊंचा कर रहा है, वो ऑटोमन एम्पायर बनाना चाहता है। यस सर। ठीक है। पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान के जो एलिट हैं, मैं बता रहा हूं, एंड आई डोंट वांट टू टेक नेम्स हियर क्योंकि मैं उनके साथ संपर्क में हूं। अच्छा। पाकिस्तान के जो एलिट हैं, जो टॉप इनकी वो है, दे आर नॉट एंटी इजराइल, जिनके असास से बाहर है। दे आर नॉट एंटी, आई एम नॉट सेइंग दे आर प्रो इजराइल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रो इजराइल हैं, लेकिन वो एंटी इजराइल भी नहीं है। ये एंटी इजराइली सेंटिमेंट पाकिस्तानी जो आवाम है, जाहिल, इसमें बड़ा है कि यहूद और हनूद की साजिश है और ये सब, इनको चूरन खिला रखा है इस्लाम के नाम पे। ये तो यहूदियों के साथ बैठ के बिजनेस करते हैं भाई। जो पाकिस्तानी गालियां देते हैं इजराइल को फेसबुक पे, फेसबुक तो यहूदी का है, मार्क ज़करबर्ग तो यहूदी है। यहूदी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे और यहूदियों को गालियां देंगे, और वो यहूदी अलाउ कर रहा है, उसका बड़प्पन है। कल बोले मैं यहूदियों ब्लॉक करो इनको, कौन है ये? माइंडसेट जानता होगा ना वो भी। भाई सब इनका माइंडसेट जानते हैं, इनका कुछ नहीं है। ये जो आप कह रहे हो ना, ओआईसी में मीटिंग हुई, वहां पे अरब कंट्रीज आर थैंकफुल। इशाक डर गया था यहाँ से आपका। इशाक डर नहीं, वो तो अलग चीज है। यस सर। मैं कह रहा हूं कि अरब कंट्रीज खुश है मिश्रा जी। यस सर। अरब कंट्रीज खुश हैं कि इजराइल ने बम मार दिया ईरान पे, वो बोल नहीं सकते। दे आर हैप्पी। ईरान को कौन पसंद कर रहा है? ईरान को कौन पसंद कर रहा है? पिछले के पिछले साल तो पाकिस्तान ने उनके ऊपर बम मारा, इन्होंने ऊपर बम मारा, ये आपस में एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे थे। आज मुस्लिम उम्मा का चुम्मा हो रहा है इनका। हाँ, इशाक डर का क्या हो गया? इशाक डर भी क्या था सर, और इन्होंने मीटिंग करी, मतलब जितने भी विदेश मंत्री थे ओआईसी। मुन्नू भी गया पता है? मुन्नू का तो नहीं पता सर। मुन्नू गया, मैंने आर्टिकल पढ़ा था। मुन्नू पहले इशाक डर वहां पे उतरा, वो फॉरेन मिनिस्टर भी है ना, डिप्टी पीएम भी फॉरेन मिनिस्टर भी है। यस सर। वहां पे दूसरा जहाज उतरा, उससे निकला मुन्नू। तभी सर मुझे लग रहा है मुन्नू ने बोला मैं फील्ड मार्शल हूँ। अच्छा, फील्ड में वो जो बॉयकॉट चला था। ये कुछ नहीं है। यस सर। देखो वही पुरानी चीज है कि हमारी भागदौड़ में कुछ कमी है तो बताओ। वो जोक सुना है ना? यस सर। नहीं सुना? सुना है। बंदर वाला था। बंदर को राजा बना देते हैं। यस सर। ठीक है, जिसने नहीं सुना मैं उनको सुना देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। शेर था जंगल का राजा, बंदर ने बोला ये क्या बकवास है, मैं भी बनूंगा। चुनाव हुआ, बंदर जीत गया, बंदर सिंहासन पर बैठा। एक बकरी आई, कह रही शेर ने मेरे मेमने को पकड़ लिया, बचाओ 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 बचाओ। तो बंदर ने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। बंदर एक पेड़ पे चढ़ा, नीचे उतरा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो बकरी ने बोला कि जब तक तू ऊपर नीचे करेगा राजा, तब तक तू खा जाएगा मेरे मेमने को। कह रहा है खा जाएगा तेरे बच्चे को, शेर नहीं खाएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरी भागा दौड़ी में कोई कमी है तो बता। तो बस यही चीज़ है, सब लोग यही कर रहे हैं कि भागा दौड़ी में कुछ कमी है तो बताओ। करना किसी ने कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है तुर्की को फर्क पड़ता है पाकिस्तान सूखा हो जाए पूरा? यू थिंक टर्की केयर्स? टर्की डजंट केयर, नोबडी केयर्स। सब लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं। ये उम्मा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। यस सर। ठीक है, बहुत बड़ा एक जालसाजी है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की, और किसी देश में वहां पे डेमोक्रेसी है नहीं। यूनिटी के लिए बोला है कि इजराइल अगर ऐसे अग्रेसिव पॉलिसी से चलते रहेगा तो हमें यूनिटी बनानी। यूनिटी है, अब पता नहीं इतनी यूनिटी के बाद अब कौन सी यूनिटी? मेरा कौन सी यूनिटी? नहीं, यूनिटी है, यूनिटी है। यूनिटी किस चीज में है कि सारे अरब देश खुश हैं कि इजराइल ने ठोक दिया, अमेरिका ने ठोक दिया ईरान को। है यूनिटी, मैं तो कह रहा हूं है। एर्दोगान को बुरा लग रहा है भाई। जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं आपकी, अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनसे जाके पूछो कि जो अमेरिका ने बम मारा ठीक मारा? क्योंकि एक बार वो यहूदी के साथ हाथ मिलाना पसंद करेंगे। यस सर। वो ईरान के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे। वो इनकी मजबूरी है कि ईरान के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है। ईरान से सर इतना मतलब क्यों है इनका? कोई खास यार वजह? देखो, ईरान एक मेजर मुस्लिम कंट्री है, बट वो नॉन अरेबिक है। अच्छा। तो अरब और नॉन अरब में दुनिया बटी है, मुस्लिम दुनिया, एक अरब और नॉन अरब। ठीक है, पहली चीज। उसमें भी बनी है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान गरीब है, ठीक है, उसको कुत्ता नहीं पूछ रहा। बांग्लादेश गरीब है, उसको कुत्ता नहीं पूछ रहा। ठीक है। ईरान जो है, ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज खड़ी कर रखी हैं दुनिया भर में, और न्यूक्लियर पावर खोज रहा है, और सबका हेडेक है, इसलिए ईरान इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ठीक है, इसलिए ईरान इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। का मॉरल कैरेक्टर है ही नहीं। इनको चाहिए भारत का पैसा। तो इनको, भारत को भी समझ में आ गया कि इनको, अब ये पाकिस्तानी गेस्ट टीवी पे आते हैं हमारे। यस सर। ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर आते हैं। क्यों आते हैं आपने कभी नोट करा है? इनको मिलते हैं $50, इनको मिलते हैं $100। फिर यहाँ के टीवी एंकर पाकिस्तानी गेस्ट को बेइज्जत करते हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो कर्नल हो, कोई भी हो, वो उनको पैसे मिलते हैं, $50 $100 मिलता है। पाकिस्तान में तो बहुत होते हैं $100 भाई। ठीक है,
वो आते हैं यहाँ पे और दिन में 2-2 3-3 बार अपनी बेइज्जती करवा के चले जाते हैं। इनका सीजन चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि टूरिज्म की जगह पे सीजन चलते हैं ना, Yes, sir. कोई भी टूरिज्म दुनिया भर में आप देखना कहीं भी टूरिज्म के सीजन चलते होंगे, उसी प्रकार से पाकिस्तानियों के इंडियन टीवी पे सीजन चलते हैं। जी गेस्ट कोऑर्डिनेशन वाला फोन करेगा, ये बोलेगा अच्छा इतने उनके पैसे फिक्स होते हैं, पाकिस्तानी आएगा, आप पाकिस्तानी पे चिल्लाओगे, पाकिस्तानी आप पे चिल्लाएगा, फिर आप चिल्लाओगे, फिर पाकिस्तानी चिल्लाएगा, आप पाकिस्तानी का फेडर डाउन कर दोगे, यानी कि उसका वॉल्यूम जीरो कर दोगे, वो ऐसे बकवास करता रहेगा, बंदर की तरह उछलता रहेगा, आप खूब उसको गालियां दोगे, वो जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि आपने उसका वॉल्यूम बंद करा। आप पाकिस्तान को गाली दोगे, आप आसिम मुनीर को गाली दोगे, आप जिन्ना को गाली दोगे, आप जिन्ना से टेबल पे मुजरा करवाओगे, आप सब कुछ करवाओगे, और उसके बाद पाकिस्तानी को बुरा नहीं लगेगा। उसको बुरा कब लगेगा? जब आप उसकी पेमेंट डिले कर दोगे। कि आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तब पाकिस्तानियों का मूड। मैं ये नहीं कह रहा सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैसा नहीं लेते, अच्छा राइट? कुछ हैं जो डिसेंटली भी बात करते हैं, पर जितने भी ये चीखने चिल्लाने वाले हैं पाकिस्तानी, सबके सब ये सब पैसा ले। उनको पता है कि मैं अगर चीखूंगा यस सर तो मुझे चैनल वाले दोबारा बुलाएंगे, अगर मैं चीखूंगा तो मुझे चैनल वाले दोबारा बुलाएंगे। हम लोग भी मजे, मैं भी चैनल पे जाता हूं, मुझे भी अच्छा लगता है जब पाकिस्तानी आते हैं, क्योंकि मैं लाइव उनकी बेइज्जती कर देता हूं।